Yes, have you all heard of the term function overloading and overriding? That comes under the chapter of polymorphism. So if I make a new package, Java Day 7 and polymorphism. So I'll just switch to polymorphism for some time and then again I'll revert back to inheritance. So polymorphism is a Greek word which stands for many forms. Stands for, am I audible to you all? Yes, no? So do you all see my paint screen? So what feature are we studying today of hoops? So polymorphism is made of two words, poly and morphism. Poly means many and morphism means forms. So it means ability to take many forms. Okay. So a polymorphic item we can call as water as a polymorphic item. It can take many forms. If water, drinking water is in which form? Liquid, right? Ice cubes are in which form? And water vapor gaseous form. So the same commodity can take three different forms. So water is polymorphic. So polymorphism in OOPS can be implemented in two ways. There are two forms of polymorphism rather. One is static polymorphism, which is also known as compile time polymorphism, which is also known as early binding. These are same thing, okay? And then second part, opposite of static we will call as dynamic. Compile time we will call runtime, and early we will call, okay. Java achieves static polymorphism by function overloading. Function, and Java achieves dynamic polymorphism by function overriding. Okay, now what is function overloading? What is function overriding? When I have two function, so let's say I have Rahul as the first name, so it's a very common Indian name. So and I have Rahul Singh and I have Rahul Kumar. Okay, and I have some other Rahul Verma. So here the first name is common, second name is different. So this I will call as name overloading. What will I call this as? What will we call this phenomena? Name overloading. So what would be function overloading then? So if I have a function called area and for a circle I have one parameter, I just need the radius. If I have a function area for a rectangle, I need two parameters, length and breadth. And if I have one more area for, let's say, for a cylinder,
So I might need the length, the breadth, and the radius. जो भी एक्स वाई जेड है, जो भी आपको समझ में आए, ठीक है, जो भी फॉर्मूला रहेगा। सो अब फंक्शन का नाम क्या है? पहला पैरामीटर क्या है? एक सिंगल इंटीजर। दूसरा पैरामीटर दो इंटीजर, और तीसरा पैरामीटर तीन इंटीजर। करेक्ट। सो इसको अर्ली बाइंडिंग इसके लिए बोलते हैं कि मुझे फंक्शन कॉल के टाइम पे मालूम हो जाता है कि कौन सा वाला एरिया कॉल होगा। सो अगर मैं फंक्शन कॉल करते वक्त एरिया कॉल करके उसको 10 पास करता हूँ, विल इन्वोक विच एरिया? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड? A B C. Let me say A, B and C. Invoke which area? A वाला, right? And if I say area 10 comma 5, will call which one? And now if I call area with 3, will call which area? एक मिनट। So if I pass 5, 10, 20, which area will it call? C. So at the calling time only I am aware as to this call will link to which function body, right? So that's why it is called as early binding, because the function call and the function body binding I know at the calling time only. So if I write in the same class, so for function overloading I do not need inheritance. I can do it without inheritance also in one single class. So, so for overloading, inheritance is not compulsory. You can do overloading without inheritance also. But for overriding, inheritance is compulsory. If you are overriding, inheritance has to be there. So if in a same class, if you have multiple functions with the same name and different body, that is called as function overloading. Then what is overriding? Overriding means if in a parent class you have a function, so let's say class father has a function void car, and father car is Audi. Then the class son extends father. So has the car function been inherited? Yes or no? Yes. So if I make object of the son class and call car, what will it display? If using the son class object I call the car function s dot car, what will be the output? This function has been inherited over here, correct? So output will be
or no? Okay, so now does the son have the car function? Yes or no? And if it has a car function and it writes one more car function of its own also with a new implementation. With a new implementation, let's say BMW. Now what happens? Now what happens? तो यहाँ पर जो फंक्शन पेरेंट क्लास में था उसी नाम से उसी आर्ग्यूमेंट से सेम टू सेम फंक्शन कहाँ क्रिएट हुआ? चाइल्ड क्लास में। तो इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं इसको? और क्या होता है नॉर्मली इसके ऊपर ओवरराइड्स करके आ जाता है। So if a function exists in the parent class and you try to make a function with the same name and same argument in the child class, so if you have a function in the parent class, the function is present in the parent class and with same name and same parameter, we make a function in the child class. Then it is called what? Function overriding. That's why I said for overriding inheritance is compulsory because you override a function of your parent class. Okay. So let me do a demo and show it to you all. So I make a class called Amita. And in that class Amitabh, I make a void car method. So then I make a class Abhishek which extends Amitabh. Okay. So now if I go and write the driver class for polymorphism, okay. Now I come here and I make an object of Abhishek. Which class object am I making? Tell me. Now can I call the car function? What will be the output? Got it? Okay, let me make one more function over here. What is Amitabh Bachchan's home name? So now can I call home from Abhishek? Yes, right? Okay. Now if Abhishek buys his own car, so Abhishek buys his own car, so what will he do?
override the car. So now when I call car, what will it display? And what has happened over here? What has the Abhishek class done? Hmm? Override. So you can put an annotation over there. At the rate overrides annotation you can put over here. Okay. When I run this code now, you will see the car name will change. Changed. So what is overriding? Yes, sir. If a function exists in the parent class and by the same name and same parameter list, we make a function in the child class also, we call that as overriding. Okay, had Abhishek done this, instead of writing car like this, had he done this, now what has Abhishek done? Now how many cars does Abhishek have? Abhishek has one car function from his father, which is non-parameterized, which is Audi, and Abhishek himself has one car function which is a parameter of integer. So now with Abhishek object, I call without any parameter, will display what? And if I call the car function passing integer as a parameter, will display what? So now what has happened over here now? Function overloading. Function. So now Abhishek has two car functions, one which has one which he has inherited from his father, which is non-parameterized car, and one car which he has made for himself, which is a parameterized car. So how many car methods are there in Abhishek now? How many car methods are there in Abhishek, guys? Two. Which two? Non-parameterized which it has inherited from his father, right? And parameterized which he has made. So if I run this code now, what will be the output? Let's save it. Let's run it. Got it? So for overloading, you don't even need to inherit. Now is any class inheriting Abhishek? Is any class inheriting Abhishek? So if I make over here void office integer n sys out Andheri office, and if I say void office string n, now how many office does Abhishek have? Two. So function name is same, parameter is different. So what is this happening over here? Overloading. So if I want to display Bandra office, how will I display that? So using the Abhishek object, I will have to call office and pass what are the parameter? To pass any string as a parameter, right? So what will this display me? What will this display me? So the office which is taking string as a parameter, right? Which is that this function will display me Bandra office, right? So let's go and run and check Bandra office. And if I call that office which is taking int as a parameter, will display what? And now run. Getting it? What is overloading? What is overriding?
in the subclass I have a function same as the parent class, I will call that as overriding. And if in the same class I make multiple functions with different parameter list, that is called as overloading. Okay. So now, has Abhishek overloaded any method? Has Abhishek overloaded any method now? Is there a method which is same in both the classes, parent and child, right now? The parent class contains non-parameterized car, non-parameterized home. Has overriding happened over here? Yes, no? No, right? So if I want to override the home, what will I do? Now what is Abhishek's home now? So if I come over here and try to hit the home, what will it display? Right? So let's come and just check it out. Right? Okay. Now tell me, in Amitabh, what is the access specifier of the home? Have I given anything over here? Public, private, protected. So what is the default specifier for a class? Package level. So while Abhishek is overriding, what has Abhishek given specifier as? Package level. Default, right? Both the way it is default. So will it allow me or not? While overriding, can we have the same specifier? While overriding, can we have the same specifier? Yes. Or we can have same or broader. So what is broader than default? What is broader than default? Public and protected both, right? So can I give over here protected void home? Yes or no? So while overriding, either you can give a wider specifier or the same specifier. So this, if I do this, it will still run. I'll get the output. Got it? New Jalsa. Can I make it public? Yes or no? Can I make it public? While overriding, it was in the parent class, it was package. Okay, so this home was package level by default. While overriding, I made it public. Is it permissible or not? Will it allow me or not? Aditya Raut, where are you? Will it allow me or not? While overriding, you have to give the same specifier or a wider specifier. So is public wider than package level? No. Who said no? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप लोग. It is not making any sense to continue with the content when you're not practicing. I don't know where I do that also. So specifiers के लिस्ट का सबसे नैरो क्या था? प्राइवेट. सबसे वाइडर क्या था? पब्लिक. बीच में क्या था? डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट मीन्स डिफ़ॉल्ट लिखना नहीं है. डिफ़ॉल्ट मतलब पैकेज लेवल. और उससे बड़ा क्या था? प्रोटेक्ट. और ये उनका नैरो, सबसे नैरोस्ट था, सबसे वाइडेस्ट था. सो अगर कोई पेरेंट क्लास में
एक्सेस स्पेसिफायर डिफ़ॉल्ट है तो उसको ओवरराइड करते वक्त सब क्लास में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसके, या तो सेम या तो वाइडर। सो अगर पेरेंट क्लास में कोई डिफ़ॉल्ट है, सब क्लास में कहना है मेक इट पब्लिक, यस और नो। अगर पेरेंट क्लास में कोई डिफ़ॉल्ट है, कहना मेक इट प्रोटेक्टेड। पेरेंट क्लास में कोई डिफ़ॉल्ट है, कहना कीप इट डिफ़ॉल्ट। पेरेंट क्लास में कोई डिफ़ॉल्ट है, कहना मेक इट प्राइवेट, नो। So now if I try to, while overriding in Abhishek, while overriding the home, if I change the specifier to allow करेगा ये? चेक करो रीजन क्या है, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है? Cannot reduce the visibility, तो आप नैरो नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये ओवरराइड करने का रूल ऐसा है। ओके, एक और शॉर्टकट है ओवरराइडिंग के लिए, अगर आपको ये नहीं करना है। सो जैसे आप क्लास के अंदर आते हैं और कंट्रोल स्पेस बार देते हैं, वो आपको लिस्ट ऑफ फंक्शंस देगा जो आप ओवरराइड कर सकते हैं। सो कैन आई ओवरराइड द कार एंड होम, यस और नो? So as you come inside the class, as you come inside the class, and as you in the sub class, and you give a control space bar, वो आपको लिस्ट देगा उस फंक्शंस की जो आप ओवरराइड कर सकते हैं। समझो मुझे होम को करना है ओवरराइड, तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो मुझे देखो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा रेडीमेड, ठीक है। और फिर इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपका जो भी आपको कोड करना है आप कर सकते हो। तो ऐसे फॉलो करना। तो इफ यू वांट टू ओवरराइड एनी फंक्शन, just give a control space bar, it will give the list of functions you can override, and from choose that and then override, and it will give the annotation at override. Okay, is this making sense to you all? कंपलसरी नहीं है, बट कंपाइलर को समझने के लिए अच्छा है वो, द गुड कोडिंग प्रैक्टिस। यहाँ पर ओवरराइड हो मेक कोड मोर रीडेबल। तो इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड यू switch to another company, and the new developer will come, your code should be easily understood by the new developer, so it should be very readable code. So wherever you can give comments and explain to anyone who looking at your code, or give proper naming conventions, camel case, Pascal case, proper package formation. So if anybody who joins can easily understand your code. So by writing this override, you are telling that new joiner that I am overriding the function over here. Okay. So if I don't write this, okay, if I don't write this, and directly he opens Abhishek class. Okay, he has not visited Amitabh class. Directly he is opening Abhishek class. Now, does he know that there is a function home in Amitabh by looking at this? No, right? But now, if you write over here, means now even if he opens Abhishek class, he will understand that you are overriding this method, means there should be some method by the same name and same argument in the parent class, that is Amitabh. So when he goes to the parent class, just go to the control, hover over on the class control. So this will turn into a hyperlink. Is it a hyperlink now? Is the icon a hyperlink icon? Right now, is it a hyperlink? Is Amitabh a hyperlink right now? No. Hit the control button and then hover. Now, and now click and go in that class. You can go. So when he goes into Amitabh, he will see, okay, there is a function by the name home which he is overriding over here. So this is what annotations help you out to write clean code and understandable code. Make sense? So it is not a question of is it compulsory or not. It is the question of so does it fall into clean code practice? Should we follow that? So if it falls under clean code practice, even if it is not compulsory, please follow it. Okay? Is it compulsory to
to name the class with a capital case. Can't I name it like this? An error. No, but this is clean code, right? Yeah. So not a question about being compulsory. It is a question of writing clean code. कौन सा एरर? क्यों एरर लेगा? उस पेरेंट क्लास में है ना फंक्शन होम के नाम का। कमेंट कर दिया इसको ऐसा। तो क्या बोले? नहीं नहीं नहीं, वो एनोटेशन बोलते हैं उसको, इसका अलग है पूरा। या आइडिया आएगा उसका। इसे एक एनोटेशन है बस। ठीक है। सो ये पॉलीमॉर्फिज्म था। अब मुझे वापस आना है इनहेरिटेंस में। तो मुझे थोड़ा पॉलीमॉर्फिज्म का नॉलेज चाहिए था, इसके लिए मैंने थोड़ा वहाँ स्विच किया। अब वापस आ जाते हैं इनहेरिटेंस में। तो अब तक हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे थे, हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट बना रहे थे? आपने गौर किया होगा, हम एक लाइन में ऑब्जेक्ट बना रहे थे। अब तक देखो, है ना पूरा। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. So how are we creating the object all this while in how many lines? सिंगल लाइन. डे वन से देख लो आप, जावा का डे वन से देख लो. यही प्रैक्टिस हम लोग का चल रहा होगा. देखो स्टूडेंट का भी सारे ऑब्जेक्ट एक लाइन में बने. बाकी टाइम पे भी कुछ किया होगा, यहाँ तक जरूरत थी नहीं ऑब्जेक्ट्स की. यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट एक लाइन पे बना है सारा, है ना. तो इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन को हम दो लाइन में भी स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है. सो इसको मैं करता हूँ टू लाइन. ओके. स्प्लिट ऑब्जेक्ट क्रिएशन डेमो. सो नॉट नेसेसरी कि आपको ऑब्जेक्ट हमेशा एक लाइन पे ही बनाना हो. आप ऑब्जेक्ट दो लाइन पे बना सकते हो ऐसा. ओके. तो अभी इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको बोलते हैं रेफरेंस. क्या बोलते हैं इसको? जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? रेफरेंस बोलो या पॉइंटर बोलो, आप जो बोलते हैं. और इक्वल टू. और जो राइट हैंड साइड है ये ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट किधर है? और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है? सिर्फ एक रेफरेंस है बस. ठीक है. सो अब अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मैं इसको दो लाइन में स्प्लिट कर सकता हूँ. तो अब यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर क्या बना है बोलो? ऑब्जेक्ट बना है क्या रेफरेंस बना है? सिर्फ रेफरेंस बना है. और रेफरेंस मेमोरी एलोकेट नहीं करता है. रेफरेंस को कुछ मेमोरी नहीं लगती है. इसका एग्जांपल ऐसा समझो कि जो है एक बिल्डिंग बन रही है. ठीक है. पीछे बिल्डिंग बन रही है और वो बिल्डिंग 100 फ्लोर्स की है और प्राइम एरिया में है. 100 स्टोरी बिल्डिंग है और एकदम पॉश एरिया में है. तो इस बिल्डिंग का बजट 100 करोड़ है. कितना करोड़, कितना बजट है इसका? 100 करोड़ का बजट है. अब जब ये बिल्डिंग बनती है तो कुछ नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं बिल्डर को. आपने गौर किया होगा, वो पूरे लैंड को उनको पत्रों से कवर करना पड़ता है ना. जो साइट है वो ओपन रहती है क्या, वो कवर्ड रहती है? कवर्ड रहती है. क्यों? ताकि डस्ट जो है वो बाहर नहीं आए, है ना. तो अब ये पत्रों के ऊपर उन्होंने एक पोस्टर लगा दिया कमिंग सून. क्या लगा दिया? एक पोस्टर लगा दिया कमिंग सून. अब ये जो पोस्टर है ये कितने का बनता है? कितने का होता है पोस्टर?
500 रुपये, 1000 रुपये है ना। अब 500 रुपये किधर और 100 करोड़ किधर। 100 करोड़ के मुकाबले में 500 रुपये की क्या हैसियत है? नेग्लिजिबल हैसियत है, कुछ भी हैसियत नहीं है। तो अगर कोई सिर्फ पोस्टर लेके आ जाए, कमिंग सून 100 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, या समझो पीछे कोई जो है ना क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड, पता है आपको गोल्ड जिम। तो अगर कोई ये लगा दे कमिंग सून गोल्ड और उसका पोस्टर लगा दे, तो पीछे जो बिल्डिंग बन रही है उधर क्या आने वाला है? इस बिल्डिंग में क्या आने वाला है? 2 माले की नहीं, समझो 2 माले की बिल्डिंग है, ठीक है, लेट्स कीप इट सिंपल। कितने माले की बिल्डिंग है? तो ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग में क्या आने वाला है? तो ये पोस्टर बना है, ये पोस्टर का खर्चा कितना है? तो अभी अगर कोई सिर्फ 500 रुपीज इन्वेस्ट करके बोले कि मैं बिजनेसमैन बन गया और मैं अभी करोड़ रुपए कमाऊंगा, विल इट मेक सेंस? तो पोस्टर तो सिर्फ एक रेफरेंस है जो पॉइंट कर रहा है कि यहाँ पर ये खुलने वाला है, करेक्ट। जो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ये है ना बिल्डिंग, है ना। सो ये रेफरेंस तो लग गया था 6 महीने पहले ही जब काम शुरू हुआ था, और 6 महीने लगे पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट होने के लिए। तो रेफरेंस लेट से लग गया था 1 जनवरी को। तो बिल्डिंग का ओपनिंग कब हुआ? 1 जुलाई को। तो अगर कोई बंदा 1 जनवरी को पोस्टर लगा के बोले कि मैं अभी मिलियनर बन गया, विल इट मेक सेंस? एक्चुअल वो कब कमाएगा? जब क्या बनेगी? ये बिल्डिंग उसमें जब आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही एक स्टाइल तो ये, दूसरा स्टाइल क्या है कि एक बंदे ने शॉप लिया और तुरंत उसका ओपनिंग भी कर दिया। तो जिस दिन उसने पोस्टर लगाया उसका ओपनिंग भी उसी दिन था। जैसे तुम देखते होंगे येवले चाय वाले लोग करते हैं, आज उसका ओपनिंग है और उसने डायरेक्टली क्या कर दिया, ओपनिंग और टी स्टॉल, और पीछे उसने पूरे बलून वलून लगा के आज से ही ओपनिंग कर रहा है। तो 6 मंथ ले रहा है क्या वो? जिस दिन पोस्टर लगाया उसी दिन बिल्डिंग रेडी हो गई ना। लोग ये स्टाइल यूज कर रहे थे अब तक। S1 इज न्यू स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट किससे बनता है? न्यू न्यू कीवर्ड से जो RHS में है, इससे ऑब्जेक्ट बनता है। और इससे सिर्फ क्या बनता है? तो हम लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस एक साथ बना रहे थे, राइट। तो जिस दिन उसके शॉप का ओपनिंग है उसी दिन उसने सुबह में आके पोस्टर लगा दिया, करेक्ट। तो पोस्टर और ओपनिंग दोनों एक ही दिन हो गए, और जैसा पोस्टर वैसी दुकान खुली। अगर इस पर लिखा है ओपनिंग टी स्टॉल और यहाँ पर उसने गारमेंट का शॉप खोल दिया, तो पोस्टर और दुकान मैच कर रहे हैं क्या? तो अगर ओपनिंग टी स्टॉल, यहाँ पर क्या होगा, क्या खुलेगा? तो पोस्टर शुड मैच। तो ऐसे यहाँ पर पोस्टर क्या लगाया इसने, ओपनिंग, यहाँ पोस्टर कमिंग सून, पोस्टर किसका है, गोल्ड्स का है। तो यहाँ पर क्या खुलना चाहिए फिर? गोल्ड्स खुलना चाहिए, राइट। पोस्टर पर कब लगा था? और पोस्टर को कुछ पैसे लगते हैं क्या? मतलब पैसे मतलब बिजनेस के कंपैरेटिव, अगर मेरा बजट 100 करोड़ का है तो 100 करोड़ के लिए 500 रुपये में कुछ इज नेग्लिजिबल, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन को 2 फेज में स्प्लिट कर सकते हैं। तो लाइन नंबर 6 पे मैंने क्या बनाया, रेफरेंस ये एक प्रॉमिस है, क्या ये एंगेजमेंट क्या होती है? एंगेजमेंट जब रिंग सेरेमनी होती है तो इट्स अ प्रॉमिस, राइट। यू विल मैरी द पर्सन यू आर गेटिंग एंगेज्ड विद, करेक्ट। सो अभी ये A1 क्या प्रॉमिस कर रहा है कि जब भी ये आगे ऑब्जेक्ट बनेगा तो A1 किसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा? हमेशा अभिषेक के ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा, ठीक है। क्या A1 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है? A1 इक्वल टू स्टूडेंट। तो दिस इज ही इज नॉट फुलफिलिंग द प्रॉमिस।
he has to fulfill the promise. So A1 सिर्फ क्या है, does not occupy memory. मेमोरी कौन ऑक्यूपाई करेगा, जब हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। तो अब मेमोरी अलॉट अलॉट हो गई, ठीक है। तो अभी तुमको इसका एक डायग्राम दिखेगी, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको समझ, जो बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत वाइडली यूज्ड है प्रोग्रामिंग में। तो अभी मैंने बनाया अभिषेक। तो अब ये A1 क्या है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो अभी सिर्फ ये एक रेफरेंस है, ठीक है। इसका नाम A1 है और अभी ये कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है, तो ये नल को पॉइंट कर रहा है। कहाँ पॉइंट कर रहा है ये, ठीक है। वेयर इज इट पॉइंटिंग टू नाउ, फिर मैंने जब एक न्यू अभिषेक ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट किससे बना, न्यू कीवर्ड्स, ठीक है। सो अभिषेक के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। तो लेट्स से कि हम अपना एग्जांपल लेते हैं जो हमने डे 1 में किया था, अपना जो प्रीवियस, ये कौन सा दिख रहा है, ये स्टूडेंट है ना। तो अभी ये स्टूडेंट क्लास में कॉपी कर लेता हूँ इधर अपने, इधर, ठीक है। स्टूडेंट क्लास कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो स्टूडेंट क्लास आ गए मेरे पास, करेक्ट। अब मैं स्प्लिट ऑब्जेक्ट क्रिएशन में जाता हूँ तो बताता हूँ स्टूडेंट S1। तो ये क्या है बोलो, ये अभी एरर क्यों दे रहा है। हाँ, तो आपने बोला कि ओपनिंग सून गोल्ड्स जिम और पीछे खुल गया रिलायंस स्मार्ट, तो प्रॉमिस को किया क्या आपने, नहीं चलेगा ना ऐसा। तो ऐसे अब मैंने सिर्फ लिखा है स्टूडेंट S1। तो S1 एक रेफरेंस बना है, कहाँ पॉइंट कर रहा है वो, नल पे। फिर मैंने बनाया न्यू स्टूडेंट और मैंने कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लिया उसका। कंस्ट्रक्टर है क्या नहीं उसमें, चलो बना देते हैं कंस्ट्रक्टर। राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, ठीक है, बना दिया। सब क्या क्या लगा उसको, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज। तो मैंने अभी जाके 18 विराट और 78.5 बन गया ऑब्जेक्ट। अब न्यू कीवर्ड से जो ऑब्जेक्ट बना है वो ये ऑब्जेक्ट बना है। रोल नंबर क्या है 18, एस नेम क्या है विराट और परसेंटेज क्या है। अब ये बना है एड्रेस 1000 पे, क्या बना है एड्रेस। अब कोई पॉइंट कर रहा है क्या इस 1000 एड्रेस पे, तो फिर मैं S1 को वहाँ पॉइंट करा सकता हूँ। क्या बोलूँगा अभी, चल जाएगा अभी। तो अभी जो S1 कहाँ पॉइंट कर रहा था, इतनी देर से S1 कहाँ पॉइंट कर रहा था, इतनी देर से नल। अब वो कहाँ पॉइंट करने लग जाएगा, नल से हट जाएगा वो, कहाँ आ जाएगा वो 1000 पे आ जाएगा, राइट। तो अब अगर मुझे 18 दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा मैं 18, SOP। अगर वो प्राइवेट रहेगा तो मैं S1 डॉट गेट रोल नंबर कर सकता हूँ, राइट। जैसे आप दो फेज में ऑब्जेक्ट क्रिएशन को स्प्लिट कर सकते हो, राइट। यस। सो ओके,
So S1 dot get roll number, you can get the roll number and name. So you can split the object creation in two phases also. Is this understood, guys? What I'm trying to show? Now, the reason I added this topic in the topic of inheritance, because now let's come here. Let's revert back to our original example. Did I remove that example or did I keep it? Oh, I guess I deleted that. So let's come back. थोड़े गोल्ड्स का नाम तो सुना है ना, गोल्ड्स का? मैं तुमको उसका ब्रांड नेम दिखाता हूँ, तुमको आइडिया आ जाए। देखो ये है गोल्ड्स। देखो ये दिख रहा है ये। तो ये पोस्टर लगाया है उसने अपने बिल्डिंग के बाहर कि ओपनिंग सून, ऐसा उसने गोल्ड्स का पोस्टर लगा दिया ऐसा, ठीक है। कंट्रोल एक्स किया। तो जो बिल्डिंग पीछे तैयार हो रही है, ये बिल्डिंग तैयार हो रही है, तो जो पोस्टर लगाया है वो ये पोस्टर लगाया है, ओपनिंग सून गोल्ड्स, ठीक है। ये पोस्टर लगा दिया उसने। तो जो भी गुजर रहा है वहाँ से वो क्या सोच रहा है कि पीछे क्या आने वाला है ना। ये उसने ओपनिंग सून लगा दिया, और कब लगा दिया उसने? ये 1 जनवरी को लगा दिया, ठीक है। अब जो लोग, और उसने डेट दे दिया 6 मंथ्स, ऐसा 6 मंथ्स में ऐसा ओपनिंग सून, ऐसा 15 अगस्त, ऐसा उसने मार्केटिंग कर दिया, इंडिपेंडेंस डे। तो ये उसने ऐसा प्रमोशन करना शुरू कर दिया। तो पीछे काम भी चल रहा है, इसका प्रमोशन भी चल रहा है। अब जो भी वहाँ से पास हो रहा है बंदा, वो देख रहा है कि इतने ब्रांडेड जो है, ब्रांड, इतना बड़ा ब्रांड अपने एरिया में आ रहा है। तो जिसका जुलाई के अंदर जिम मेंबरशिप एक्सपायर हो रहा था, और वो बंदा जिम करने के लिए दूर जा रहा था, 2-4 किलोमीटर दूर, और फिर लोग ऑफ़र भी देते हैं, बोलेंगे क्या ऑफ़र, वन मैम वन फ्री, सो यू कम विथ योर फ्रेंड एंड वी विल गिव यू द फ्रेंड फ्री। सो अभी अगर उसका मेंबरशिप एक्सपायर हो रहा है जुलाई में, विल ही रिन्यू हिज मेंबरशिप एट हिज ओल्ड जिम, और विल ही take this offer and use world class facilities nearby his house? What would you do? Yes, guys. आप लोग समझ में आ रहा है मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ? सो जुलाई में, नेक्स्ट मंथ में तो जिम खुल ही जाएगा ना उनके एरिया में, तो वो अपने ओल्ड जिम में मेंबरशिप रिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, कि हाँ उसको अच्छा ऑफर भी मिलेगा। तो अब वो जो ओल्ड जिम वाला बंदा है, उसका समझो 12,000 रुपीज़ पर ईयर का मेंबरशिप है। अब वो देख रहा है कि यार कोई रिन्यू नहीं कर रहा है, सब लोग गोल्ड्स के वेट कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि जो जुलाई एंड तक रिन्यू कर लेगा उसको मैं 50% डिस्काउंट दे दूंगा। कितना दे दूंगा मैं? लोग फिर भी नहीं रिन्यू कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं गोल्ड पे ही जाएंगे और अपने को डिस्काउंट मिलेगा। और फिर 1 अगस्त आ जाता है और ये जिम वाला ये ऑफ़र को क्लोज कर देता है, पुराने जिम वाला, ठीक है। अब आ जाता है 15 अगस्त। अब 15 अगस्त में जब ये ओपनिंग होती है, तो यहाँ पर क्या खुलता है मालूम है? यहाँ खुलता है गोल्ड्स जिम का ट्रेनर हॉस्टल। क्या खुलता है? क्या खुलता है इधर? ट्रेनर का, ट्रेनर्स जो भी ट्रेनर्स है उस शहर में, वो सारे यहाँ आके रहेंगे। अब
लोग बोल सकते क्या तुमने हमको चीट किया करके? क्या उसने बोला था कि मैं गोल्ड जिम ही खोलूंगा? देखो पोस्टर में जिम का लिखा है क्या? अगर चलो गोल्ड जिम ये नहीं आया, वहां पर आ जाता है एथलीट लोग का जिम। तो एथलीट का जिम अलग होता है, नॉर्मल लोग का जिम अलग होता है। गोल्ड जिम फॉर एथलीट्स। तो अगर आप एथलीट्स है, यानी आप क्रिकेट फुटबॉल कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप अपने क्लब का या अपने जो भी आपकी टीम है उसका एक लेटर हेड लेके आ जाए आपके टीम मैनेजर की तरफ से, हम आपको फिर ट्रेनिंग इधर अलाउ करेंगे, बिकॉज ये सिर्फ एथलीट लोग की जिम है। सो या इधर खुल जाता है गोल्ड्स का कॉरपोरेट ऑफिस, जहाँ वो लोग मार्केटिंग या उनका फाइनेंशियल संभालते हैं, जहाँ उनके एम्प्लॉयज़ बैठते हैं, जॉब करते हैं। तो एनीथिंग कैन ओपन ओवर हियर, राइट? सो कैन द पब्लिक टेल कि इसने हमको बेवकूफ़ बनाया, हमको एक्सपेक्टेशन पे रखा, और हम फिर हमने उसके चक्कर में आके हमने पुरानी जगह पे रिन्यू नहीं किया, वहाँ के ऑफर हमारे छूट गए, और यहाँ पर इसने जिम खोला नहीं, ऑफिस खोल लिया। तो क्या गोल्ड इज टू ब्लेम और द पीपल देमसेल्फ आर टू ब्लेम? यस, नो, मे बी। क्योंकि उसने जिम बोला था क्या किधर? तो वो उसके बैनर का कुछ भी खोल सकता है ना इधर, जो उसके बैनर में आता हो। ये सब किसके बैनर में आ रहे हैं? गोल्ड्स के ना। हाँ, अगर यहाँ पर डी मार्ट खुल जाता तो फिर पब्लिक को शिकायत करने का कंप्लेन था, तो फिर लोकल कॉर्पोरेटर आएगा, बच्चे जब गोला करेगा, धिंगाना करेगा। क्यों? क्योंकि आपने बेवकूफ़ बनाया, है ना। यहाँ कोई स्कूल खुल जाती तो फिर इशू था, बट अगर ये खुलता है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो जो रेफरेंस था उसका कोई भी चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट बन गया तब भी अलाउड है। ये सब किसके चाइल्ड है? ये सब किसके चाइल्ड है? गोल्ड्स के चाइल्ड है। तो आप जो रेफरेंस बनाते हो ना, आप पेरेंट का रेफरेंस बना दो, और पेरेंट के रेफरेंस से आप कोई भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर सकते हो। इसको बोलते हैं पी पी न्यू सी। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंस किसका है? पेरेंट का। और ऑब्जेक्ट किसका है? चाइल्ड का। तो ये बहुत वाइडली यूज होता है रियल टाइम डेवलपमेंट में। इसको बोलते हैं अपकास्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? तो नॉर्मली हम लोग क्या करते आए हैं? हम लोग करते आए हैं सी सी न्यू सी। हम लोग क्या करते हैं हमेशा? जो क्लास का ऑब्जेक्ट उसी क्लास का पॉइंटर, उसी जो क्लास का ऑब्जेक्ट उसी क्लास का पॉइंटर, है ना। बट हम पी पी न्यू सी भी कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं पी पी न्यू सी। ठीक है, तो समझ में आया तुम लोग को? एग्जाम्पल ये स्प्लिट करना समझ में आया, रेफरेंस अलग किया, ऑब्जेक्ट अलग किया, समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हुआ है बोलो? यहाँ पर क्या हुआ है? रेफरेंस किसका है? स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट भी किसका है? तो जिस क्लास का रेफरेंस उसी क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा सा गेम को चेंज करता हूँ। ठीक है, इसको कमेंट करता हूँ मैं। अब मैं इस पे आता हूँ और मैं अमिताभ क्लास का रेफरेंस बनाता हूँ। अब ये क्या बना है? ऑब्जेक्ट क्या रेफरेंस? रेफरेंस। अब अमिताभ क्लास के ऑब्जेक्ट से, अमिताभ क्लास के रेफरेंस से मैं किसको पॉइंट कर सकता हूँ? और मेरे दो ऑप्शन क्या है? मैं अमिताभ को ही अगर पॉइंट अमिताभ ऑल्सो नो। ये क्या हो गया? पी पी न्यू पी। क्या हो गया ये? पी पी न्यू पी। अगर मैं करूँ अभिषेक का रेफरेंस और अभिषेक का ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? सी सी न्यूज। ये भी पॉसिबल है ना। जिस क्लास का रेफरेंस उस क्लास का ये ऑब्जेक्ट, तो हम लोग करते आइए शुरू से। अब मेरा सवाल ये है, क्या मैं A1 इक्वल टू न्यू अभिषेक कर सकता हूँ? कोई
प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये क्या हुआ है? इसको बोलते हैं अपकास्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? डाउन कास्टिंग अलाउड नहीं है। डाउन कास्टिंग अलाउड नहीं है। ए टू इक्वल टू न्यू अमिताभ नहीं कर सकते। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सी सी न्यू पी। क्या बोलेंगे इसको? रेफरेंस किसका? चाइल्ड का। ऑब्जेक्ट किसका? इसको बोलते डाउन कास्टिंग। तो जस्ट जावा सपोर्ट डाउन कास्टिंग। तो देखो अभी इधर एरर आ गया। एरर पढ़ लो क्या लिखा है। क्या लिखा है एरर? कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम अमिताभ टू अभिषेक। तो अमिताभ टू अभिषेक आपका डाउन है। अमिताभ से अभिषेक होना आपका डाउन है। अरे अमिताभ टू अभिषेक डाउन है क्या? आप है तो डाउन कास्टिंग जावा अलाउ करता है क्या? नहीं करता है। ये नहीं कर सकते हम। तो ये बहुत वाइडली यूज करेंगे हमेशा, याद करना है इसको। ये तो अमिताभ का रेफरेंस और अभिषेक का ऑब्जेक्ट, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी। देखो ये रेफरेंस किसका बनाया? रेफरेंस किसका है? और ऑब्जेक्ट किसका है? ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का है। तो क्या बोलेंगे इसका? यस यस यस, जो भी है तो जो भी है अलाउ कर दिया था। तो ऑब्जेक्ट किसका है? चाइल्ड क्लास का है। पॉसिबल है ऐसा? वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, अब इसमें एक लिमिटेशन है, एक कंडीशन अप्लाई है। तो वो कंडीशन अप्लाई क्या है, मैं वो भी तुमको बताता हूँ क्या है कंडीशन अप्लाई। तो लेट्स से कि एक फादर है और एक सन है। देखो ये जो किसने बनाया है ये जावा, जेम्स गॉसलिंग ने। किसने बनाया है? ये जेम्स गॉसलिंग के अंदर इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर था या वेस्टर्न ट्रेडिशन, वेस्टर्न कल्चर था? बोलो। वेस्टर्न थिंकिंग था इसका, है ना? और वेस्टर्न थिंकिंग में फैमिली बॉन्ड, वेस्टर्न बॉन्ड थिंकिंग में फैमिली वैल्यूज इतने डीप नहीं रहते जितने हमारे इंडिया में फैमिली वैल्यूज को हम देते हैं ना। पेरेंट्स तक, एंड तक पेरेंट्स को संभालते हैं, और ब्रदर्स सिस्टर्स से वी आर इंटीग्रेटेड, क्लोजली निट, है ना? उनसे अपनी मुलाकात, उनसे टच में हम लोग कॉन्स्टेंटली रहते हैं। इनका ऐसा नहीं है। इनका एक बार अडल्ट हो जाता है ना बंदा, 18 हो जाता है ना एक बार, फिर वो अपना खुद का लाइफ जीना शुरू कर देता है। फिर मॉम कहाँ रह रही है, मॉम किस हाल में है, डैड किस हाल में है, डैड कहाँ जॉब कर रहा है, डैड से मिलना तो एकदम कैजुअली मिलना, नाम लेके हाय फ्रैंक, और उसके साथ में बैठ के दारू पीना, मतलब कोई ऐसा एकदम वैल्यूज वाली बात नहीं आती। अपने कहते पैर छूते और है ना, नमस्ते करते, जो भी रिस्पेक्ट वाला मामला इंडिया में अलग है, उनका अलग है ना? उनका थिंकिंग बहुत प्रैक्टिकल है। उधर आप बच्चे को मार भी नहीं सकते, वरना वो बच्चा पुलिस को फ़ोन कर देगा और फिर पुलिस घर पे आती है और पेरेंट्स को काउंसलिंग करती है कि आपने बच्चों को टॉर्चर किया है, ये आपका फर्स्ट वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम अगर हमको कॉल आया तो मे बी यू हैव टू पुट यू बिहाइंड बार्स। तो इधर फ्रीडम बहुत है उनका। जो भी वो लोग ह्यूमन राइट्स के नाम पे उनका उनका अलग लाइफ स्टाइल है, तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज। ओके, उधर फादर सन के पैसे खर्चा नहीं कर सकता है उसके परमिशन के विदाउट, वरना वापस वो पुलिस को फ़ोन कर देगा। तो ये आइडियोलॉजी जेम्स गॉसलिंग ने जावा के अंदर भी डाल दी, क्योंकि ये वेस्टर्नर था तो उससे इन्फ्लुएंस था। तो समझो कि अभी एक फादर है, उसके पास 100 CR है। कितने CR है? और उसने अपना सारा का सारा पैसा सन ने उससे इनहेरिट कर लिया। ठीक है, फादर ओल्ड हो गया और फादर बोलता है कि मेरा तो अभी एंड डेज चल रहे हैं,
तो क्यों ना मैं सन को अपना सारा पैसा इनहेरिट करा दूँ। तो उसने अपना लॉयर बुला के डॉक्यूमेंटेशन बना दिया, तो सन ने सारे इनहेरिट कर लिए फादर का अकाउंट में से। तो अब सन का कितना हो गया नेटवर्थ, ठीक है। अब फादर जो है एक दिन वॉकिंग को जाता है, उसको एनजीओ मिलता है, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड एकदम जेन्यून एनजीओ, ठीक है, एकदम फ्रॉड वाले नहीं, एकदम 100% ऑथेंटिक जेन्यून पीपल मिलते हैं उसको। और वो बोलते हैं कि हम लोग एक हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसका बजट 110 CR है, तो क्या अगर आप हमको डोनेट करेंगे तो हम वो आपके नाम से हॉस्पिटल बना देंगे, ऐसा वैसा। और ये जो फादर है इसकी ने अपने स्वर्गवासी बीवी को प्रॉमिस किया था कि आई विल मेक अ हॉस्पिटल बाय योर नेम। अब ये मॉर्निंग वॉक से घर आता है और सन को बोलता है कि सन, यू रिमेंबर आई हैड प्रॉमिस्ड योर मदर बिफोर डाइंग दैट आई विल मेक अ हॉस्पिटल ऑन हर नेम, ओके, कमला देवी हॉस्पिटल। So I have got a golden opportunity now. So I have met few people who are making a hospital and they need donation. So can you sign a check of 110 CR? Can you sign a check of how much? अब ये लड़का जो है ये वेस्टर्नर है क्या इंडियन इन्फ्लुएंस से? तो ये क्या बोलेगा, देखो डैड आपने मेरे को 100 CR दिए हैं, आप अपने 100 CR का जो करना है वो करो, बट मेरे 50 CR में झांको मत प्लीज, or else I will call the police. You do not have any permission to take decision on my money. My money is my money. So अब फादर उससे सिर्फ कितना अमाउंट ले सकता है? जितना उसने दिया है ना, उसके अलावा अगर 1 रुपया भी फादर ने एक्स्ट्रा उसको बोला और उसको नहीं देने का है और फादर ने इंसिस्ट किया, तो उधर कानून पे चले जाते हैं वो लोग, उनका लॉ बहुत ऐसा है इस मामले में, है ना। यही सिनारियो को इम्प्लीमेंट कर लो अपने इधर, ठीक है। लेट्स फास्ट ट्रैक इट टू महाराष्ट्र, सेम यही सिनारियो है। अब महाराष्ट्रन वैल्यूज को हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, इंडियन वैल्यूज को ऑन अ लार्जर स्केल। तो फादर के पास 100 CR है और फादर ने अपने विल लिख दी और सन के पास 50 CR है, तो सन ने वो फादर से इनहेरिट कर लिए। अब सेम यही सिनारियो है, फादर आता है घर पे, बोलता है कि आई हैव परचेज लैंड फॉर योर मदर्स हॉस्पिटल एंड अपने को 110 CR का चेक देना है ना। सो अभी इंडियन सन क्या बोलेगा कि पिताजी अगर 160 CR भी लग रहे हैं आपको, तो आप बोलो हम 160 CR भी अरेंज कर लेंगे, 150 तो अपने पास है पहले से, और 10 CR का मुझे अगर लोन लेना पड़े तो वो भी ले लूँगा, पर हम लोग हॉस्पिटल बनाएंगे मम्मा के नाम की, है ना। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हैंड ओवर कर देगा, पर यहाँ पर नहीं होगा। सो जब हम पीपी न्यूसी करते हैं ना, क्या करते हैं, तो रेफरेंस किसका है, तो पेरेंट्स के रेफरेंस से हम वही फंक्शन कॉल करते हैं जो सन ने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है। जो सन का खुद का है हम वो फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, समझा। सो अभी रेफरेंस किसका है, अभी अमिताभ है, ऑब्जेक्ट किसका है। अब इस A1 रेफरेंस से मैं वही कॉल कर सकता हूं जो अमिताभ ने दिया है अभिषेक को। अमिताभ ने क्या दिया अभिषेक को, कार और होम, और अभिषेक ने खुद का क्या बनाया है, कार विद टीचर एंड ऑफिस, है ना। क्या मैं अभी अमिताभ के रेफरेंस से ये कार कॉल कर सकता हूं, नहीं। कैन आई कॉल दिस होम, यस, क्योंकि ये होम तो अमिताभ ने दिया ना उसको, नॉन पैरामीटराइज्ड होम किसने दिया है, तो वो कॉल कर सकता है, बट जो उसने नहीं दिया है वो उसको कॉल नहीं कर सकता। देखो इधर, अब देखो अभी A1 से मैं क्या कॉल, देखो होम कॉल हो जा रहा है, ठीक है, तो वो कॉल हो जाएगा और क्या आएगा आउटपुट, जलसा, क्या न्यू जलसा। तो मेथड किसके लिए होगा, मेथड बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट, मेथड बिलोंग्स टू द, तो
ऑब्जेक्ट किसका है, तो होम किसका कॉल होगा, रेफरेंस का नहीं। और डेटा बिलोंग्स टू द रेफरेंस, डेटा बिलोंग्स टू द, डेटा बिलोंग्स टू द, एक क्लास में क्या 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 होता है, मेथड होते हैं और डेटा होता है ना। तो लेट्स से कि पब्लिक स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन है, तो लेट्स से अमिताभ की क्वालिफिकेशन लेट्स से एलएलबी है, और अभिषेक की लेट्स से क्वालिफिकेशन बीकॉम है। क्या है, बीकॉम, ठीक है। तो क्या क्वालिफिकेशन है अभिषेक की, तो क्वालिफिकेशन क्या डेटा है क्या मेथड है, ठीक है। अब डेटा किसको, डेटा किसका होगा हमेशा, रेफरेंस का। अब अगर मैं यहाँ सिस आउट करता हूँ और बोलता हूँ A1 डॉट क्वालिफिकेशन, तो क्या बताएगा, अमिताभ का, रेफरेंस का डेटा किसका होगा हमेशा, और मेथड किसका होगा हमेशा, देख रहा है एलएलबी आ गया। और क्या अभी अमिताभ ऑफिस कॉल कर सकता है, A1 रेफरेंस, A1 डॉट, देखो ऑफिस, देखो ऑफिस वो दिखाई नहीं रहा है, ऑफिस वो कॉल ही नहीं कर पा रहा है ना, ऑफिस विद अ स्ट्रिंग कॉल कर पा रहा है ना, वो कॉल कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, हाँ खास चाइल्ड का एक्सक्लूसिव है ना, पेरेंट ने नहीं दिया है। तो पीपी न्यू सी में ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, आप पीपी न्यू सी कर सकते हैं बट विद दिस रिस्ट्रिक्शन, यू कैन नॉट कॉल ऑल द मेथड, यू कैन ओनली कॉल दोज मेथड विच यू हैव गिवन। समझ में आ रहा है तुम लोग को ये, अब कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो अभी क्या बोल रहा है ये, नॉट विजिबल हो जाएगा, क्या बता रहा है ये, अमिताभ में है ही नहीं करके ऑफिस है ना। ओके, अगर मुझे ऑफिस से कॉल करना तो क्या लगेगा मुझे अभी, अभी मुझे अभिषेक का रेफरेंस लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको अभिषेक के फंक्शन कॉल करने जो एक्सक्लूसिव अभिषेक के अंदर ही हो, तो फिर आपको उसका रेफरेंस ही लगेगा। अगर मुझे ऑफिस कॉल करना है तो मुझे फिर अभिषेक ही लगेगा, है ना। ऐसा अभी अभी एरर निकल गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड polymorphism and upcasting thoroughly, and how to segregate the reference and how to segregate the object. So हम लोग रियल टाइम में क्या करते हैं, पहले रेफरेंस बना लेते हैं, फिर उसी रेफरेंस को हम रीयूज़ कर सकते हैं बार बार। देखो इसी रेफरेंस को मैं बार बार रीयूज़ कर सकता हूँ अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। देखो इसको अनकाउंट कर दो ना, देखा ये रेफरेंस बन गया। अब जितने चाहो उतने में ऑब्जेक्ट उसी रेफरेंस से बना सकते हो, बट एट अ पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट वो रेफरेंस किसी एक ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा, किसी एक को ही पॉइंट करेगा। तो अभी लेटेस्ट S1 कहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इन दो को फिर वो पॉइंट नहीं करते, ये तो हो जाएंगे गार्बेज। क्या हो जाएंगे ये, गार्बेज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ये। सो मेक अ फ्रेश ड्राइवर, या कीप योर माइक ऑन, मेक अ फ्रेश ड्राइवर, मेक अ फ्रेश ड्राइवर क्लास, ओके। हाँ बस, हाँ ठीक है चलेगा, टू कर दो चलेगा। नहीं टू टू ठीक, टू ठीक था, मेन ऐप टू काफ़ी था। जो तुमको नाम देना है दे, वो कंसर्न नहीं है। हाँ एंटर। अब यहाँ पर तू क्या कर, जो भी तूने क्लास बनाया है कोई भी क्लास बना ले, लेट्स अभिषेक, अभिषेक इसको निकाल दे, पूरा मेन खाली कर दे। तो you have a student class, copy it from any package student class and bring it over here। पर्सन ले ले, हाँ ये ले स्टूडेंट ले ले, कॉपी कर ले इसको, कंट्रोल सी कर और यहाँ पेस्ट कर दे, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर, ड्रैग ड्रॉप मत कर। ठीक है। अब इस क्लास का रेफरेंस बना अभी इधर मेन ऐप टू में, स्टूडेंट S1, तो ओनली सिर्फ रेफरेंस बना। अब जाके पेंट में मुझे बता कि ये कैसा दिख रहा है,
एक स्प्लिट स्क्रीन कर, पेंट को राइट में ओपन कर और एक्लिप्स को लेफ्ट में ओपन कर। इसको लेफ्ट में ले या राइट में ले, विंडोज लेफ्ट विंडोज राइट, विंडोज बटन दबा के लेफ्ट एरो की दबा दे। हाँ ठीक है, और एक्लिप्स को, हाँ ठीक है चलो वेरी गुड। अब इसको ड्रॉ कर मुझे, तो कैसे ड्रॉ करेगा इसको, सिर्फ रेफरेंस को? तो ये रेफरेंस हो गया राइट। क्या कर रहा है, S1 हो गया ये। और कहाँ पॉइंट कर रहा है ये S1 अभी? हाँ तो दिखा, कहाँ S1 कहाँ लिखा हुआ है, S1 नल नल के कहाँ लिखा हुआ है? हाँ कहाँ पॉइंट कर रहा है ये? एज ऑफ नाउ ये कुछ भी पॉइंट नहीं कर रहा है, करेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट बना दे न्यू स्टूडेंट और S1 उसको पॉइंट करा दे। जरा जावा जावा में आ जा। जावा विंडो में आके पहले जावा में क्रिएट कर रहा, पहले अभी क्रिएट कर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से इसको पास कर दे, पैरामीटर्स पास कर दे अगर तूने बनाया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो। है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उसमें क्लास में? हाँ है ना कि नहीं है? हाँ है ना। हाँ तो डाल दे पैरामीटर्स के अंदर। पैरामीटर का ऑर्डर कॉपी कर, नीचे जा और नीचे जा, देखो नीचे था ना, लाइन नंबर लेफ्ट लेफ्ट। हाँ लाइन नंबर 50 है क्या? हाँ उसी पैरामीटर का लिस्ट कॉपी कर ले और वहाँ से ऑब्जेक्ट बना ले। रोल नंबर नेम परसेंटेज इज एक्टिव, जाओ उधर, रोल नंबर नेम परसेंटेज इज एक्टिव। रोल नंबर डाल दे पहले 1, नेम डाल दे, रोल नंबर नेम परसेंटेज डाल दे और इज एक्टिव डाल दे। तो अभी ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कैसे करेगा? अभी ड्राइंग के अंदर S1 निकाल, S1 अंदर से निकाल दे। ऑब्जेक्ट के अंदर उसका डेटा रहता है, रेफरेंस अंदर नहीं रहता। You can maximize the left window if you are struggling to find all the possible tabs. ठीक है, यहाँ पर आएगा तो लिख दे रोल नंबर इज 8, नेम इज आदित्य, परसेंटेज इज एक्टिव इज ट्रू फास्टर। गौतम अभी ज्वाइन कर रहा है 12:40 को। ओके, और इसका एक एड्रेस बनेगा 1000 नीचे, बॉक्स के नीचे लिखना है एड्रेस को 1000। इज योर स्क्रीन लैगिंग? हाँ सो अब ये 1000 कौन पॉइंट करेगा अभी? ये ऐसा, ठीक है वेरी गुड।
ओके वेरी गुड। अभी अगर मैं लिखाऊं S1 डॉट गेट एस नेम तो आंसर क्या आएगा? दिखा, लिख के दिखा। सिस आउट करना पड़ेगा ना, डिस्प्ले करना है ना अपने को। क्या हो गया? मुझे सिस आउट ही दिख रहा है, लैग हो रहा है क्या तेरा मशीन? हाँ ठीक है, अभी रन कर, देखा आदित्य आ रहा है क्या? आ गया? ठीक है आ गया। ओके अब वापस लाइन नंबर 11 पे जा, S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और एक नया स्टूडेंट बना नए पैरामीटर्स के साथ। हाँ लाइन नंबर 9 कॉपी कर ले और पेस्ट कर दे नीचे, उसे वैल्यूज चेंज कर दे। नहीं नहीं नहीं, लाइन नंबर 9 कॉपी कर और 9 नंबर 12 पे पेस्ट कर। नहीं नहीं, लाइन नंबर 11 को डाल दोनों के बीच में। ओके तो जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो S1 का नेम क्या था? आदित्य। अब वापस लाइन नंबर 11 को पेस्ट 10 को पेस्ट कर 12 पर भी, कॉपी पेस्ट द सेट सेम लाइन। या अब आंसर क्या आएगा? ओके इसको ड्राइंग करके दिखा, अभी कैसे कैसे हुआ रहेगा। लेफ्ट विंडो में आ जा, पेंट विंडो में। नाउ कैन यू ड्रॉ दिस फॉर मी इन द पेंट कि व्हाट हैज हैपेंड बिहाइंड द सीन्स। यस आदित्य। whenever you make a new ऑब्जेक्ट, एक नया एड्रेस पे मैं होता है एलोकेशन। 1001 नहीं, 1000 नहीं, 2000, 2000 पे। 1001 बोले तो थोड़ी एक बाइट में वो ऑब्जेक्ट पूरा आ गया। यस। हाँ तो अभी S1 का पॉइंट कर रहा है भाई आदित्य। हाँ 2000 पे। अब क्या S1 ऑब्जेक्ट पे कोई वैलिड रेफरेंस है जो पॉइंट कर रहा है उस पे? कोई है क्या? Does S1 have any valid reference? The object, the Aditya 78.5 true. Does it have any valid reference? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ उसको मैं, ये रिप्लाई नहीं कर रहा आदित्य। Is there any active reference pointed to the Aditya object? 8 Aditya 78.5 and true. No. So those objects to which no active reference is pointing are marked as garbage, and the garbage collector thread will come in the background and will clear those objects. Okay. So you can use a reference to point to other objects, but that reference will currently point to one object only. So previously where it has pointed, those will be marked as garbage. तो क्योंकि अभी हम S1 से एक्सेस करेंगे तो हमको भूषण ही मिलेगा, आदित्य नहीं मिलेगा, है ना। रन कर अभी ये कोड, रन कर ये कोड और देख, है ना। ठीक है। हाँ तो ये बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है वो दिमाग में चलते रहना चाहिए। सिर्फ शैलो प्रोग्रामिंग मत करो ऊपर ऊपर बस,
बस इनसाइड पेनिट्रेट करोगे, देखो क्या अंदर हो रहा है मेमोरी के अंदर। ठीक है,